नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बांग्लादेश में इस वक्त हालात कैसे हैं पूरी दुनिया देख रही है। बांग्लादेश में किस तरीके से आगजनी, तोड़फोड़, सड़कों पर हंगामा, हिंदुओं के खिलाफ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश की हिंसा को और बांग्लादेश में जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, इन्हें सिलसिलेवार समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि बांग्लादेश में हिंसा केवल हिंदुओं के लिहाज से है तो यह भी गलत है। अगर आप समझते हैं कि बांग्लादेश की हिंसा केवल यूनुस अपने हिसाब से करवा रहे हैं, चुनाव ना हो इस लिहाज से करवा रहे हैं, तो यह भी समझना गलत है। बांग्लादेश की हिंसा के पीछे जो देश लगे हुए हैं, जिस तरीके की प्लानिंग की खबरें सामने आ रही हैं, वो समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस उस्मान हादी की हत्या हो चुकी है, उस उस्मान हादी का बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से वो बांग्लादेश में पिछले 1-1.5 साल में उभर कर सामने आया, उसकी हत्या के बाद उसके भाई ने जो आरोप लगाए हैं, जिस तरीके का बयान उसके भाई ने दिया है, वो भी समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब आप उस्मान हादी के भाई के बयान को समझेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि बांग्लादेश की इस हिंसा के पीछे किस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई अपना पूरा प्लान तैयार कर रही है, किस तरीके से बांग्लादेश के रास्ते भारत को दहलाने की तैयारी हो रही है। यह चीज आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि शेख हसीना की सरकार जिस वक्त गिरी थी, उस वक्त यही उस्मान हादी था जिसने नौजवानों को भड़काया, जिसने सड़क पर बवंडर मचाया। आज उस्मान हादी की हत्या हो चुकी है। अज्ञात हमलावरों ने उस्मान हादी को मार दिया, लेकिन अब उसके भाई के खुलासे ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं बांग्लादेश में चल रहे पूरे बवाल के बीच में। अब चर्चा करेंगे, मेरे साथ पंकज सर मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले जरा उस्मान हादी के भाई के इस बयान को समझिए और सुनने की कोशिश करिए और समझिए कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। जरा सुनिए उस्मान हादी के भाई ने क्या कहा। আপনারাই উসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় উসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনাদেরও বিচার হবে। শহীদ উসমান হাদির গোটা খুনি চক্রকে জাতির সামনে উপস্থাপন করুন। একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন, বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের আগে যারা ক্ষমতাধর ছিলেন, যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতেন, তারা কিন্তু আজকে কেউই বাংলাদেশে নাই। তারা পালাতে বাধ্য হয়েছে। উসমান হাদির বিচার যদি না হয়, আপনারাও একদিনে বাংলাদেশ থেকে পালাতে বাধ্য হবেন। যে এজেন্সির হয়ে, যে রাষ্ট্রের হয়ে আপনারা উসমান হাদিকে হত্যা করেছেন, মনে রাখবেন উসমান হাদি কোনো এজেন্সি, কোনো রাষ্ট্র, কোনো তাবেদারের কাছে কখনোই মাথা নত করে নাই। সে যদি মাথা নত করত, অন্য বিক্রি হওয়া নেতাদের মতোই সে সুখে জীবনযাপন করতে পারত। সে বাংলাদেশের 18 কোটি মানুষকে পথ দেখিয়েছে কিভাবে রাজপথে আন্দোলন করতে হয়, কিভাবে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়, এজেন্সির রক্ষচক্ষুকে উপেক্ষা করে জনসাধারণের নেতা হয়ে উঠতে হয়। ওসমান হাদি এটা আমাদের সামনে প্রমাণ করে গেছেন। আপনারা দেখবেন জীবিত ওসমান হাদির চেয়ে শহীদ ওসমান হাদি অনেক গুণ শক্তিশালী হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসছে। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ ওসমান হাদির বিচারের অপেক্ষায় আছে। সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করব, আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনাদেরও বিচার হবে। আজ হোক, 10 বছর পরে হোক, বিচারের কাঠগড়ায় আপনাদেরকে দাঁড়াতেই হবে। আপনারা যদি মনে করেন আর 2 মাস পরে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে চলে যাবেন, বিদেশে চলে যাবেন, মনে রাখবেন এই দেশের জনতা আপনাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। তাই সরকারকে অনুরোধ করব, দ্রুত খুনিদেরকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করুন। নির্বাচনের পরিবেশকে যাতে বিঘ্ন না হয়, খুনির বিচার করুন।
আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। তা আমরা কখনোই হতে দিব না। ওসমান হাদি বলেছিলেন ফেব্রুয়ারিতে দেশে নির্বাচন হতে হবে এবং সেই নির্বাচন করার জন্য সে প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নেমেছিল, কিন্তু তাকেই হত্যা করে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রিয় বিপ্লবী জনতা, আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, আজকে আমরা শহীদি শপথ পাঠ করার পরে পরবর্তী প্রোগ্রামের জন্য অপেক্ষা করব। পরবর্তী প্রোগ্রাম থেকে খুনিদেরকে গ্রেপ্তার করা না পর্যন্ত রাজপথ ছেড়ে আমরা যাব না ইনশাআল্লাহ। पंकज सर, उस्मान हादी के भाई के बयान को आपने सुना। बांग्लादेश में जिस वक्त हिंसा भड़क रही थी उस वक्त इस तरीके की चर्चाएं थी कि शायद पाकिस्तान के आईएसआई इस तरीके की हरकत कर रहा है और बांग्लादेश के सहारे भारत को दहलाने की कोशिश रच रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए जो जख्म भारत ने दिए हैं उसका बदला लेने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। कैसे समझ रहे उस्मान हादी के इस भाई के बयान को आप? अभिषेक, चूंकि ये बंगाली में है तो जो लोग बंगाली नहीं समझते तो उसका मैं हिंदी बताता हूं। वो 3 बातें प्रमुख रूप से कह रहा है। पहली बात वो कह रहा है कि उसके भाई को जो मारा गया है वो मारने वाला आज भी बांग्लादेश में छिपा हुआ है, वो भारत नहीं भागा है। दूसरा, वो मोहम्मद यूनुस को कह रहा है कि हम आज तक इसलिए चुप थे क्योंकि जो मार्च प्रोटेस्ट हुआ था जब शेख हसीना हटी थी, वो प्रोटेस्ट डिरेल ना हो जाए, वो जो इनकलाब था, वो जो आंदोलन था वो खराब ना हो जाए, इसलिए हम आज तक खामोश थे। वो कह रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद कर दिया 16 महीने में, वो ये कह रहा है। तीसरी बात जो वो ये कह रहा है कि जमात ने रिलीज करवाया था हत्यारों को, वो जो हत्यारा था वो जेल में बंद था और उसको बेल मिला और जमाते इस्लामी ने उसको बेल दिलवाया और बाद में उस हत्यारे ने उस्मान हादी की हत्या कर दी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो भी स्टूडेंट शेख हसीना को हटाने में जो आंदोलन में शामिल, वो या तो एनसीपी में है, वहां नेशनल सिटीजन पार्टी है उसमें है, या फिर इनकलाब मोर्चा में है जो उस्मान हादी का संगठन है। ठीक है। तो अब सारा का सारा दबाव जो बांग्लादेश में जो माहौल चेंज हो रहा है, जिस तरह से शेख हसीना विलेन थी और आज भी है, नो डाउट, उसी तरह अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का विलेन होता जा रहा है। सारी पार्टियां देखिए, आवामी लीग को तो बैन कर ही दिया उसने। उसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी वहां बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया वाली, वो भी मोहम्मद यूनुस को लानत भेज रही है। एक नीलोफर है, प्रवक्ता है, उन्होंने भी ये कहा कि जो ये सारा बवाल है वो तो यूनुस का रचा हुआ है। जमाते इस्लामी ने उसको रिलीज करवाया, मरवाया है, स्टूडेंट्स को, छात्रों को मरवा रहा है मोहम्मद यूनुस, उसने बकायदा टेलीविजन पे कहा है, नीलोफर ने, बीएनपी के। उसके बाद इनकलाब मोर्चा ने कहा और फिर अब एनसीपी के नेता लोग मारे जा रहे हैं, जो छात्र हैं वो सभी मारे जा रहे हैं, तो वो सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। तो सेकेंड बिगेस्ट विलेन बन रहा है मोहम्मद यूनुस। एक और बड़ी डेवलपमेंट है बांग्लादेश में कि खालिदा जिया का बेटा, हाँ, वो वापस जिसका नाम है तारिक रहमान, वो वापस आ रहा है और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और अभी जो मेरे पास सूचना है, जिस यूनिवर्सिटी, जो ढाका यूनिवर्सिटी से शेख हसीना के खिलाफ बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई, वहां उससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है और ये आंदोलन जो है वो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ है। और सारे, मतलब कि वहां एक जनता मोर्चा, जनता पार्टी, जातीय पार्टी है, वो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का संगठन है, वो है उसमें शामिल, सारे स्टूडेंट शामिल हैं, इनकलाब मोर्चा शामिल है, बीएनपी शामिल है। तो जिन लोगों ने शेख हसीना को हटाया, अब उनमें से 80% लोग मोहम्मद यूनुस को हटाना चाह रहे हैं। ये तो हो गया इंटरनल वहां बात जी। अब आते हैं भारत, पाकिस्तान और बाकी देश क्या कर रहे हैं बांग्लादेश मामले पे। मोहम्मद यूनुस को उम्मीद थी, मोहम्मद यूनुस को यह उम्मीद थी कि कम से कम इस पूरे हंगामे पर अमेरिका कोई ना कोई स्टेटमेंट जारी करेगा, शांति की अपील करेगा, या हो सकता है कुछ ना कुछ तो बोलेगा जी। जो अमेरिका के राजदूत थे वो भारत में आए, दिल्ली में बैठकर फोन लगाया वहां और एक लाइन कहा कि जितनी जल्दी हो इसे शांत करो। यह झटका था मोहम्मद यूनुस के लिए।
क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी। उसके अलावा जो वहां डायरेक्टर है, इंटेलिजेंस के डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हालात चिंतित है और हम भारत सरकार के नजरिए के साथ हैं। यह झटका था। मोहम्मद यूनुस तो अब तक सोच रहा था कि चाहे अमेरिका हो या चाइना, कम से कम सपोर्ट तो जरूर करेगा। रशिया के राजदूत हैं बांग्लादेश में, ढाका में, वहां हाई कमीशन है। उन्होंने कहा कि बेटर हैंडल दिस और यू विल हैव टू पे द प्राइस। तो मतलब कि रशिया, आपने जो एक खुलासा किया वो बहुत बड़ी खबर है, और ये जाहिर तौर पर लोगों को इसके थोड़ा सा अंदर की चीजें समझाइए। आपने बोला कि एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हो रही है ढाका यूनिवर्सिटी हो रही है। ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर आपने ये ब्रेक की है। अब यहां पर मैं एक चीज समझना चाहता हूं। देखिए, जो आरोप लग रहे हैं सर कि आईएसआई ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी बांग्लादेश के रास्ते भारत को दलाने की। शेख हसीना क्योंकि अलग नरम दल की नेता थी, वो भारत के साथ उनके अच्छे संबंध थे, उनको हटा दिया गया एक आंदोलन के तहत। अब क्या आपको लगता है कि आईएसआई का जो प्लान था बांग्लादेश के रास्ते भारत को दहलाने का, वो प्लान फेल हो गया है अगर ये आंदोलन खड़ा हो रहा है यूनुस के खिलाफ? क्या कहते हैं सर? आईएसआई का प्लान क्या था या पाकिस्तान का प्लान क्या था, कुछ समझिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई महीने में जी। पूरे भारत का गुस्सा उस वक्त पाकिस्तान की तरफ था, बिल्कुल पूरा नैरेटिव पाकिस्तान की तरफ था जी। अभी आप खुद महसूस कीजिए कि भारत का गुस्सा किधर हो गया, डाइवर्ट बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश की तरफ, हाँ। कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ जिसमें भारत को कोई लेना देना नहीं था, हाँ। लेकिन आज हर भारतीय ढाका के बारे में बात कर रहा है, बांग्लादेश के बारे में बात कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक तो है कि नैरेटिव वॉरफेयर में हमसे ध्यान हटाकर भारत के लोगों का ध्यान बांग्लादेश की तरफ मोड़ दिया जाए। एक जो बड़ा उनका अचीवमेंट है वो ये है। ठीक है, ठीक। दूसरा, जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो उसी वक्त ढाका में जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है वहां एक विंग का गठन हुआ जिसका नाम था बांग्लादेश विंग, और इसको लीड कर रहे हैं मेजर करीम। ये पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से जुड़े हुए हैं मेजर करीम। इन्होंने क्या किया कि जो कट्टरपंथी ताकतें जिसकी वजह से पाकिस्तान बर्बाद हो रहा था, उन सब को बांग्लादेश की तरफ मोड़ दिया और बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए गए भारत के बॉर्डर के पास। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मेजर प्लान था कि अगली बार जब पाकिस्तान के तरफ भारत कुछ करे तो भारत के ईस्टर्न बॉर्डर यानी बांग्लादेश के रास्ते भी उसको डिस्टर्बेंस होना चाहिए, तो हमारे पाले हुए जिहादी अगर इधर रहेंगे तभी इसको डिस्टर्ब करेंगे। तो दूसरा बड़ा प्लान था। तीसरा जो तख्ता पलट वगैरह है, आईएसआई की कोशिश यह है कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश सत्ता में आ जाए ताकि उनकी मनमर्जी किसी भी तरह। नहीं, जमाते इस्लामी बांग्लादेश है क्या पहले समझिए, वो कौन सी पार्टी है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो बहुत सारे लोग थे बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के मुसलमान जो कि उर्दू स्पीकिंग थे और वो पाकिस्तान भाग गए। लेकिन वो पाकिस्तान उधर नहीं भाग सके, पंजाब तरफ नहीं, वो ईस्ट पाकिस्तान गए क्योंकि उनके लिए ये भी तो पाकिस्तानी था ना। तो वो गए वहां पे और वो रहने लगे। ये लोग उर्दू स्पीकिंग मुसलमान हैं जो बिहार से गए या उत्तर प्रदेश से गए, इन सब राज्यों से गए वहां। अब जब 71 का लड़ाई हुई तो 71 किस बात पे हुआ, बंगला भाषा, बंगला स्वाभिमान। लेकिन ये तो उर्दू बोलते थे, ये तो 10-20 साल पहले भारत से गए थे। तो इन्होंने सोचा कि अरे हम तो पाकिस्तान आए थे, ये क्या हो गया, ये तो बंगाली और गैर बंगाली के बीच में झगड़ा हो गया। बिल्कुल। उन लोगों ने उस वक्त उन लोगों ने क्या किया कि पाकिस्तानी सेना को मदद पहुंचाई और मुखबिरी करते थे इन बंगालियों के खिलाफ, क्योंकि वो मानते थे कि हमारी भाषा जो है उनसे मिलती है, इस्लामाबाद वालों से। हाँ। हमारा जो हम दिखते हैं, हम गोरे हैं, लंबे हैं, ये तो बंगाली काले हैं, छोटे दिखते हैं, ये बंगाली बोलते हैं, ये मछली खाते हैं, हम तो ये सब खाने वाले, हम तो गोश्त खाने वाले हैं। तो इस बात को लेकर वो अपना एसोसिएशन पाकिस्तान से ज्यादा रखते थे। जब चुनाव हुआ था जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को बम्पर वोट मिले थे, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते, उस चुनाव में भी 60% मुजीबुर रहमान को मिले थे वोट और 40% मिले थे जमात को, यानी पाकिस्तान फर्स्ट लोगों को। वो आज भी तो है ना बांग्लादेश में। और जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो इन लोगों ने बड़ी कोशिश की। पहले क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी तो थोड़ा बीएनपी के साथ जुड़ गए जो कि एंटी इंडिया पार्टी मानी जाती थी। और फिर
इन्होंने अपना संगठन बना लिया जमाते इस्लामी बांग्लादेश, और इन्होंने अलकायदा और आईएसआईएस वगैरह से कांटेक्ट कर लिया। आज वही ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं और मोहम्मद यूनुस की मदद वही कर रहे हैं। और बाकी जो मूल बंगाली वहां पे हैं वो अलग है, वो या तो छात्र हैं तो एनसीपी बना के, या हादी की पार्टी है तो इनकलाब मोर्चा बना के, जो क्षेत्रीय दल है वो जातीय पार्टी बना के लड़ रहे हैं, और आवामी लीग बैन हो गया। आज भी वो जो 40% लोग हैं वो सत्ता पे आने की कोशिश है, और आईएसआई उनकी मदद कर रहा है। तो सर इसे तो जो ये आंदोलन की ये बात हो रही है, इसे तो आईएसआई के लिए झटका माना जाएगा और भारत की खुफिया एजेंसी की एक तरीके से बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। नहीं, ये देखना होगा कि वो आंदोलन का स्वरूप कैसा होता है। देखिए, वो दुश्मन परमानेंट है। एक तो शेख हसीना विलेन है, ये आप मान लीजिए, विलेन है। और दूसरा विलेन है इंडिया उनकी नजर में, क्योंकि उसने शेख हसीना को छुपाया है। लेकिन ये जो आंदोलन हो रहा है, ये इस आंदोलन में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो रहा है। लेकिन इसको लीड कौन कर रहा है और किसको विकल्प? अगर तारिक रहमान, जो कि बीएनपी खालिदा जिया का बेटा है, अगर उसके नेतृत्व में सरकार बनती है तो शेख हसीना के मुकाबले थोड़ा सा कट्टर होगा, लेकिन हमने बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार देखी है तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ये जो वर्तमान रेजिम है इससे बेहतर होगा। लेकिन अगर उस आंदोलन को यही जमात वाले लीड करते हैं और कोई बिल्कुल कठमुल्ला टाइप का कोई दूसरा आ गया, तब भारत के लिए और मुश्किल हो जाएगी। तो आईएसआई की कोशिश यह रहेगी कि जमात इस्लामी को सत्ता पे बैठा दे, और जो बाकी को कोशिश रहेगी कि या तो स्टूडेंट आ जाए या तारिक रहमान आ जाए, इन लोग अपना मोर्चा बना के वहां के सत्ता पे। ये संकेत इसीलिए मिलते जा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबे अरसे बाद तारिक रहमान वापस बांग्लादेश आए हैं, बहुत लंबे अरसे बाद। बिल्कुल। तो इसीलिए संकेत मिलते जा रहे हैं कि शायद भारतीय खुफिया एजेंसी की एक बहुत बड़ी कोई प्लानिंग तैयारी होगी, तभी ये चीजें हो रही हैं। नहीं, भारत की नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, इंडिया हैज नथिंग टू डू विथ इट। क्योंकि तारिक रहमान इंग्लैंड में है। और जो भी बांग्लादेश में हो रहा है वो सीआईए इंग्लैंड और यूरोप के रास्ते हो रहा है या फिर पाकिस्तान के रास्ते हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। तारिक रहमान की पॉपुलैरिटी किसी भी नेता से कम नहीं है। जब वो शेख हसीना थी वहां पे, तब भी कहा जा रहा था कि अगला प्रधानमंत्री तारिक रहमान बने। तारिक रहमान होगा। और वो पढ़ा लिखा मतलब कि नौजवान तो नहीं कह सकते, प्रौढ़ है, लेकिन वो थोड़ा सा वेस्टर्न सोच का आदमी। और ये पूरी जो प्लानिंग है बांग्लादेश में हो रही है, वो है इंडिया और चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा था। तो हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस का एक्सपेरिमेंट फेल कर गया तो अपने दूसरे प्यादे तारिक रहमान को भेजाओ, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने तो कंप्लीट मोहम्मद यूनुस ने तो कंप्लीट कैओस मचा दिया ना, वहां तो कुछ वो कर ही नहीं सका। बिल्कुल सही। और ये जो उमर हुदा है, जो उस्मान हादी का जो भाई है, वो तो इसको नालायक बुढ़ा कह रहा है मोहम्मद यूनुस को। हाँ, नालायक बुढ़ा और क्या क्या नहीं कहा, नपुंसक तक कहा दिया और कहा कि पूरा बर्बाद कर दिया देश को। तो ये नेशनल मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है, तो सोचिए अब और क्या बाकी रह गया। बिल्कुल सही बात है सर। बिल्कुल सर, सवाल तो बहुत बड़े हैं और जाहिर तौर पर इन सवालों का जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। देखने वाली बात होगी किस तरीके से बांग्लादेश के हालात बदलेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर पाकिस्तान जिस तरीके से नापाक साजिश रच रहा है बांग्लादेश के रास्ते, जो भारत को दहलाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं इन नापाक मंसूबों का जवाब भी देना बेहद जरूरी है और इस पर बहुत सावधान रहना होगा भारत सरकार को भी और खुफिया एजेंसियों को भी। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।